Everyone, my name is Mariam Akhtar, and today I will be hosting the event. I am basically the ambassador for Engineer Talks, and I am from NUST. So, if we talk about what actually is Engineer Talks, so they basically provide you the career counseling, and they provide you uh, the, we arrange different seminars where there are personal grooming sessions, foreign scholarships, personality building, and soft skills development. And through these sessions, you get the opportunity to talk to different professionals. And today, the topic of our webinar is Kickstart Leadership. And we have a special guest, Mr. Kamaran Rizvi, and he's the co-founder of Canadian and School of Leadership. And he also has written 5 books. And today we will be having a very interactive session. And I welcome you all on board. Please feel free to have any questions. We would actually be following a pattern that Sir would be addressing for some 5 minutes or 10 minutes, and later I would ask you all. You guys can have your hands raised, and then you can ask questions, but please keep it to short till 1 minute. And by the end of the session, you will also be getting certificates. So, sir, I welcome you on board, and you can start the session right now. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I'm very happy, very honored to have been invited by Engineer Talks, and I'm very happy to have met Mariam Akhtar, who is one of our very star performing participant in the conference, Young Leaders Conference. Good to see you, Mariam, after a very long time. And I would like to congratulate Osama, who's the founder president of Engineer Talks, and Harchand, with whom I had a nice conversation. Also, Miss Rida, I haven't met her, but she's the focal person, I believe, at Engineer Talks, and Manzoor Ahmed, who looks at media marketing, who's a media marketing manager, and then Vishen Pariyar, social media head. So I want to thank all of them for making this possible and giving you access to different personalities in Pakistan, so that, as Mariam rightly mentioned, careers are uppermost in the young minds कि पढ़ाई शढ़ाई करके कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है. तो ये एक सिलसिला है. आज का जो मौजू है किक स्टार्ट लीडरशिप. तो आई वांट टू फर्स्ट टॉक अबाउट किक स्टार्ट. और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा मरियम कि जो लोग सुन रहे हैं उनमें से किक स्टार्ट जब वो सुनते हैं तो व्हाट थॉट कम्स टू देयर माइंड. तो आप किसी एक को इनवाइट करें और उनसे पूछें कि उनके जहन में क्या ख्याल आता है. Sure. Kainat, can you unmute yourself? Okay, Sure. Amen, can you? Oh, yeah, sure. Go ahead. Yeah. Can you repeat, please? I think there's connection issue. हाँ कायनात, मैं ये कह रहा हूँ कि when you see the topic kickstart leadership, तो आप इस टॉपिक से क्या मैसेज लेती हैं, आपको क्या सेंस मिल रही है? It seems like a booster, something like that. Right. Thank you very much, Kainat. That was brief. Booster. Achha, then I also see there's an RS with a raised hand. उनको जरूर बुलाएं. Yes. You can ask your question. You have your hand raised up. मरियम, Roha, आपकी आवाज जो है वो क्रैकल कर रही है, वो क्लियर नहीं आ रही for some reason. I don't. Could it be your headphones? अब बात करके देखें. Rohan, you have your hand raised up. Yes, much better now. पहले वो आवाज आपकी क्रैक कर रही थी. हाँ. Who is this person with the hands up? Roha.
हाँ, रूहा से कहो ना कि वो Yes. अपनी सोच बताए, किक स्टार्ट लीडरशिप से उसको क्या सेंस मिल रही है। I guess we can continue. I think so. There's like a problem. Like वैसे ही गलती से hand raise हुआ है, I guess. ठीक है, चलें, कोई बात Yeah, नहीं। at the time. So what I would like to do is then talk about Kickstart and then leadership, and उसके बाद फिर हम open to the floor करेंगे, comments and questions को invite कर रहे होंगे। तो मेरी गुजारिश है कि मेरे दोस्त जो सुन रहे हैं वो बहुत ही तवज्जो के साथ, कागज कलम अगर नहीं लेके बैठे तो फिर मैं चाहूँगा कि वो नोट पैड एंड पेन जरूर रखें। मैं बदनामे ज़माना ट्रेनर हूँ। I always insist that people write rather than just listen passively. तो Kickstart के हवाले से there are 4 or 5 ideas. The first one is identity, शनाख्त, मैं कौन हूँ। और दूसरा है वो सेल्फ अवेयरनेस, खुद आगाही। और तीसरा है मकसद, purpose. You know, what is the purpose of my life? Why did God send me to this planet? And what am I supposed to be doing here? And the fourth is ठीक है. So if I'm clear on my identity, I'm more aware of my resources, strengths, and areas of improvement, then also got a sense of idea, what is my purpose. तो फिर उसके बाद एक self assessment का जो सिलसिला होता है वो भी आता है। तो kick start happens when we come out of sleep, जब हम नींद में होते हैं ना और जिंदगी ऐसी गुजार रहे होते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। So when we come out of that lull and think for ourselves कि मैं कर क्या रहा हूँ, I think that is a kick start. बिल्कुल जैसे मोटरसाइकिल में जब बैठते हैं तो हम किक स्टार्ट करते हैं उसको, and once the engine goes, that's the time when we have to bring in the leadership, and the leadership is taking that bike somewhere and knowing where to go and how to get there and making sure we have enough fuel in it and stuff like that. और हेलमेट ऑफ कोर्स पहनना जरूरी है अगर आप बाइक में। एंड इस तरह से किक स्टार्ट के पीछे मेरे कुछ ख्यालात थे, एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू एवरीवन कि मैं ये कहूँगा कि मैं आपको आपसे मिलाने आया हूँ। आई हैव कम हियर टू इंट्रोड्यूस यू टू योरसेल्फ, और उसकी एक वजह है। एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर पीपल मस्ट बी अम्यूज्ड कि यार कामरान हमसे कभी मिले नहीं हैं लेकिन इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं। तो दिस इज अ क्वेश्चन आई विल बी हैप्पी टू attend to as soon as someone asks. Let's talk of leadership. Kickstart is about waking up and getting on with what we are meant to be doing. And leadership is about a set of behaviors. क़यादत जो होती है वो बड़े लोग नहीं होते जो कुर्सी पे बैठे हैं, हाई ऑफिस में बैठे हैं, हाँ वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या वो पब्लिक सेक्टर में ब्यूरोक्रेट्स से ऊपर बैठे होते हैं। It's not a positional thing. Leadership is very much to do with our lifestyle. ये हमारी लाइफस्टाइल है, ये हम अपनी जिंदगी लीड कर रहे हैं, हम जी रहे हैं। तो whether I'm in school or college or university or in a family setting or in a community or in my social circle or in some voluntary organization or at work, wherever I might be, leadership is really not about positions and titles. In fact, they say that titles don't make leaders and leaders don't need titles. So what are we left with? A set of behaviors. हमारे रवैये कैसे हैं? And इस लिहाज से अगर हम leadership को देखें तो everyone listening is not only a good leader but is also a good follower. And I will just say that I am a very good leader and I'm also a very good follower. And I would not be a good leader if I was not a good follower. इसी तरह से I'm a teacher, but I'm also a student. ये नहीं है कि मैं स्टूडेंट था और अब मैं टीचर बन गया हूँ। मैं स्टूडेंट था और आज भी स्टूडेंट हूँ, बिकॉज माँ की गोद से कब्र तक हमें सीखते रहना है। तो leadership is about a set of responsibilities we take for a vision that we have in our lives, and that vision needs to be so attractive to yourself and to your loved ones that they all want to be a part of it. That vision is something that we see in the mind's eye.
and it's compelling, it's beautiful. आपने देख लिया तो आप समझ चलें कि हो गया। तो विजन के बारे में ये है, और फिर उस विजन को पूरा करने के लिए जाहिर सी बात है, वी नीड करेज, वी नीड कमिटमेंट, एंड वी नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉट ओनली आवरसेल्व्स बट पीपल अराउंड अस। बिकॉज अगर हमें लीड करना है, हमें दूसरों को अपने साथ मिलाना है और इस रोल को रोटेट भी करना है। तो किक स्टार्ट लीडरशिप इज वेक अप, take responsibility, develop a vision, and move on. So this is really some thoughts I wanted to share in the early part. And those listening would have comments or questions which I would like to use as the basis of going forward. Over to you, Mariam. Sure. So we have so far one comment that very well said, sir. And Mariam Sajid is also saying thumbs up. So yeah. Good. Do we have any questions? Any questions or any point that you will like to add? Yeah, question or comment, and if not, then I'll continue. So we'll count. We'll do a countdown. ठीक है ना? 5, 4, 3, 2, 1. अगर नहीं है तो then I'll continue. Yes, sir. Sure, continue. फिर हम 5 मिनट के लिए कंटिन्यू करेंगे, फिर अगर कोई क्वेश्चन कमेंट होगा फिर हम ले लेंगे, इस तरह से चलते हैं। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, ये सेल्फ अवेयरनेस के हवाले से ये अक्सर कहा जाता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा मौजू है, खुद को जानना, तो जिसने खुद को जान लिया उसने अपने रब को जान लिया, इस किस्म की बातें सुनने को आती हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम सब जानते भी हैं, और वो है कि आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। You are the best creation of God. You are better than the sun and the stars and the moon and the universe. They're all there for you. तो ये जो ख्याल है जिसको हम सब जानते हैं, इसको अपनी जिम्मेदारी बनाना, ये बड़ा मैंने कम देखा। How is it that I know something but I don't bother to discover? If God has made me the best creation, what am I doing to discover the gifts that He has given me, so that I'm able to utilize them and improve not only my life, but the lives of those who live around me? ये एक बहुत ही ज़रूरी पहलू है सेल्फ अवेयरनेस के हवाले से कि यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। इट्स अ गिवन, तुम एक इंसान हो, तुम्हें बहुत बड़ा एजाज़ अल्लाह ने दिया है, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम बाइख्तियार हैं। वी कैन मेक चॉइसेस, वी कैन मेक डिसीजन, वी कैन चूज टू बी व्हाट वी वांट टू बी। एक शेर जो है वो हमेशा शेर रहेगा, हिरन हिरन रहेगा, खोता खोता रहेगा, घोड़ा घोड़ा रहेगा। इंसान जो चाहे बन सकता है। आई मीन, इससे बढ़ के और क्या। और करियर्स की जब हम बात करते हैं और फ्यूचर की जब भी हम बात करते हैं, तो देयर इज समथिंग दैट ऑलवेज बॉदर्स अस कि यार कहाँ जॉब मिलेगी, किस ट्रैक को मैं पकड़ूं, वेयर विल आई बी यूजफुल, एंड हाउ कुड आई फुलफिल माई कमिटमेंट्स टू फैमिली एंड मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन। कमाऊंगा तो कुछ होगा। तो मेरी यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी एक सोच है जो कि अल्लाह राज़िक है, अल्लाह राज़िक है। और जब भी किसी छिपकली को दीवार पे देखो तो कहो कि भाई जब उसको भी खिला रहा है तो मुझे भी खिलाएगा, उसी ने उसको भी पैदा किया है, मुझे भी पैदा किया है। तो जब छिपकली को, घोड़े को, कुत्ते को टेंशन नहीं है तो फिर मुझे कहाँ से फिक्र शुरू हो जाती है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज to decide what we want to do with our lives. तो एक generic purpose हम सबका है कारामत होना। I have to be useful in a particular domain. God doesn't want us individually to solve all the world's problems. I have to be useful in a particular domain. And उस domain को identify कर लूँ कि भाई मुझे health पे काम, या मुझे हेल्थ पे करना है, या मुझे एजुकेशन में काम करना है, या मुझे Raksha, your mic is unmuted, so can you mute it? Yeah, it's okay now. Sir, you can continue. No problem. हाँ, तो ट्रैक्स होते हैं ना। तो अब if you see yourself as a problem solver, तो आप किसी मसले का जब हल बनते हैं
then you have two tracks. You can either take up a job and work with organization that is working on that problem, or you can start your own business and decide as to how you will satisfy the needs of the customers that you've identified, the market segment that you've worked on. कि हाँ इन लोगों की ये issues हैं और इसको मैं resolve करने आया हूँ. And सही मानों में not everyone is suited to entrepreneurship and neither is everyone suited to doing a job. तो अपनी self awareness में आपको अपने aptitude के बारे में भी जानना है कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया. So it's important not to go by fashion, but to go by your own inclinations and your own aptitude and attributes that you have identified in yourself, and be true to your purpose as you have defined it. What is my purpose in life and what does my life mean to the world? Because देखो ना, meaningless existence भी होती है और meaningful existence भी होती है. So kickstart is when you discover the meaning of your life to the world and to yourself. That is kickstart. And leadership is then executing that idea and making sure that you are not in the journey on your own, but you take more people with you in order to have a greater impact in society. तो ये इसके अंदर टीम बिल्डिंग भी है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी है, स्टेक होल्डर असेसमेंट भी आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, पर्सनल ब्रांडिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांडिंग है. So you want to build yourself over years of consistent effort as a brand, and not only yourself but as an organization as well. तो ये चंद ख्यालात थे लीडरशिप के हवाले से और किक स्टार्ट के हवाले से. तो if there are any comments or questions, we'll count from 10 to 0. Yes, sir. We have few questions. Number one is, kindly can you repeat the 5 elements of Kickstart? The 5 elements are self-awareness. Then the second one is identity. The third one is purpose. The fourth one is self-assessment. And the fifth one is, making making a decision on whether to be an entrepreneur or whether to take a career track as an employee. ये kickstart है. We have one more question. Sir, how to practice leadership skills if we don't get an opportunity to become a leader in any role? Wonderful. Wonderful. I think this is ये किसने सवाल किया है? बहुत अच्छा सवाल है. 18MTE01. I guess उनके बैच का है ये. So yeah. जी सर, मैं मंजूर अहमद. Very good. मंजूर. जी सर. मंजूर, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है. सबसे पहले तो ये है कि अपॉर्चुनिटीज आती नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बनाई जाती हैं. अमूमन लोग अपॉर्चुनिटीज के इंतजार में होते हैं कि कोई मुझे पूछे, कोई मुझे मौका दे तो फिर मैं करूंगा. और लीडरशिप का जो तकाजा है वो ये है कि आपकी जिंदगी जो है हर लम्हे अपॉर्चुनिटीज से घिरी हुई है. और अगर हम अपॉर्चुनिटीज देख नहीं पा रहे, इसका मतलब है कि हम मेंटली तैयार ही नहीं है लीडरशिप के लिए. और जहां हमारे जहन में वो तैयारी आ जाएगी तो हमें हर चीज और हर जगह मौके नजर आएंगे. और हमारा मसला ये नहीं होगा कि मौके नहीं मिलते, किस मौके को थामूं और आगे बढ़ूं. तो एक तो ये वाला पहलू है. एंड देयर इज अ सेइंग, सक्सेस इज व्हाट हैपेंस व्हेन प्रिपरेशन मीट्स विद अपॉर्चुनिटी. तो हमें पूरे वक्त अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखना है for making a contribution. And leadership is taking that initiative in a particular direction which actually wins the hearts of people you're serving. और जहां आपने impact create किया, आप देखिएगा word of mouth के जरिए बहुत कुछ होता है. इसमें ना तो आपको किसी ओहदे की जरूरत है, ना किसी टाइटल की जरूरत है. आपको तो सिर्फ अपने काम को इस तरह से करना है कि लोगों का उसमें फायदा हो रहा हो, जिसके नतीजे में आपको भी होगा. तो क़यादत पहल करने का नाम है, इंतजार करने का नाम नहीं है.
We have a comment. Self-acceptance is greater challenge for me than self-awareness. How can I take it? Could you repeat that again? Self-acceptance is greater challenge for me than self-awareness. So वाह, how I can take it? इनका नाम क्या है? अगर वो अनम्यूट करके Ahsan बता दे। जी, Ahsan Iqbal. Ahsan एहसन Iqbal. इकबाल। एहसन इकबाल, ये मिनिस्ट्री प्लानिंग में तो नहीं है? वो भी एहसन इकबाल है ना, तो पॉलिटिकल लीडरशिप में। तो एहसन का जो सवाल है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस इज अ बिगर चैलेंज देन सेल्फ अवेयरनेस, तो मैं थोड़ा सा इनसे चाहूंगा कि वो अनम्यूट करके सेल्फ एक्सेप्टेंस को समझाएं कि चैलेंज क्यों है। Ahsan, you can go ahead and unmute yourself. Look in future, sir. He just commented Hello, I am look audible in now. future. Yes, you यस are. जी, एहसन Hello. जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए। Yes, sir. Thank you so much. यू वेलकम। जी सर, सेल्फ अवेयरनेस मेरे ख्याल से 100% हम जो है वो अपने आप को एक साथ तो डिस्कवर नहीं कर पाते। हम टाइम टू टाइम जैसे जैसे हमें अपने मुतालिक कुछ ना कुछ चीज़ें पता लगते रहती हैं, हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते रहते हैं। बट द पॉइंट इज कि बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जब भी कोई चीज़ आया होती है कि लाइक मेरी ये स्ट्रेंथ है, मैं शायद इसमें कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, तो मैं ट्राई करने से पहले नीश देखता हूँ, सोसाइटी में इसका क्या एक्सपोजर है, या मेरी जो जो ये इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो 70-30 है या 60-40 है, समथिंग लाइक दैट ना। तो मैं कंपैरिजन करने ज़्यादा बैठ जाता हूँ बनिस्बत इसके कि मैं स्टेप लूँ और बाद में देखूँ कि होता क्या है। तो ये एक एक टाइप की पर्सनैलिटी है। अब पता नहीं, मैं तो इसको खैर एक्सेप्ट तो करता हूँ, बट इसका प्रॉब्लम ज़्यादा है रादर देन के कोई बेनिफिट हो। हाँ, एंड आई थिंक अगर आप सही मानों में देखें तो बहुत से लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। A lot of people are doing a lot of things. हमें अपने मकसद पे फोकस करना है और अपने मार्केट सेगमेंट पे फोकस करना है और उनको खुलूस के साथ और प्रोफेशनलिज्म के साथ वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं जो उनकी नीड के मुताबिक है। दैट इज ऑल वी नीड टू डू। बाकियों को कंपैरिजन के हवाले से ना देखें, आप बाकियों को सिर्फ बेंचमार्किंग के लिहाज से, लर्निंग के लिहाज से जरूर देख सकते हैं कि भाई व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम दोज who have followed in this path and have made a particular level of headway. But to compare कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, आगे कौन निकल गया, पीछे कौन रह गया, that is completely immaterial. अब मैं आपके सामने हूँ, I'm in this business of training and development and now organization development. I've been here for 30 years. और मैं देखता हूँ अपने गिर्द इतने लोग माशाल्लाह मैदान में आ गए हैं, बहुत मुझसे आगे निकल गए हैं, कुछ मेरे तरह चल रहे हैं, कुछ आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे। लेकिन मुझे सिर्फ खुशी होती है, मुझे ये नहीं होता कि ओ माय गॉड मैं रह गया, वो आगे आ गया। कोई भी आगे आए, किसी का फायदा हो रहा हो, मुझे क्या है, मैं तो और भी खुश हो जाता हूँ, मेरा बोझ कम हो जाता है। तो यू वांट टू स्टार्ट चेंजिंग द वे यू सी अदर्स। Look at others as your teachers, as books, as examples you can gain inspiration from, and stop comparing because you are already the richest man in the world. I am the richest man in the world. आप दुनिया को अपना ले, आपकी दुनिया हो गई, खत्म हो गई बात। यस सर, एग्रीड। हाँ सॉरी टू कट यू सर, जी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब मैं बीइंग अ लीडर सोचता हूँ, मतलब माइंडसेट ये होता है कि जिन लोगों को मैं इंस्पायर करूंगा उसकी जो मेरी सेगमेंट ऑडियंस होगी वो अच्छी खासी होगी। तो फिर जब पहले से ही इतने हाई प्रोफाइल लोग होते हैं तो आप डरते हो लाइक कि हाँ, मैं मिसाल दे देता हूँ आपको, एक छोटी सी मिसाल। आपको किसी को इंस्पायर करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने काम से गर्ज करना है। वो लोग इंस्पायर आपके काम को देख के खुद ही हो जाएंगे। यू आर नॉट सपोज टू गो अराउंड हियर, आई एम हियर टू इंस्पायर यू। तौबा करो, सही है। तो आप ये अपना बोझ ना बनाएं कि मैं लोगों को इंस्पायर करने निकला हूं। आप एक ढंग का काम करने निकले जिसको देखकर लोग इंस्पायर हो जाएंगे। दैट्स ऑल। वो खुद से होंगे, वो कहेंगे कि यू आर वेरी इंस्पायरिंग। आपको सोचना भी नहीं है कि भाई क्या है, आपको तो एक मिसाल बनना है बस। यू आर डूइंग समथिंग, यू आर डूइंग गुड,
आपको देखा देखी लोग खुद से जब आपको फॉलो करते हैं वो इंस्पायर हो गए। आपको थोड़ी इस नियत से चलना है कि मुझे लोगों को इंस्पायर करना है। नेवर डू दैट, कोई जरूरत नहीं है। आप बस ढंग का काम करें और मैं आपको इशारा दे देता हूं जो सबके लिए बहुत काम का होगा। इफ यू आर earning money and living in a home, you're wasting your time. But if you are earning goodwill and you're living in the hearts of people, you're doing great. तो अगर आप रोज 2 लोगों का दिल जीत लें, आप 2 लोगों से दुआ कमा लें और उनके दिल में जगह बना लें, रोज अगर आप 2 लोगों के साथ ये करें तो आपको मैं बताता हूं कि यू वुड बी फ्लाइंग वेरी हाई इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह तुम्हें बहुत एजाज देगा। पैसे आनी जानी चीज है, आपको लोगों का दिल जीतना है, उनके दिलों में जगह बनानी है, दुआ कमानी है। काम क्या करना होगा उसके लिए वो आप सोच लें। लोगों के काम आना है ना आपको, तो फोकस कर लें कि किस शोबे में आप ये काम करेंगे। दैट्स इट। सो प्लीज डोंट टेक दिस प्रेशर कि आप कितने इंस्पायरिंग हैं और आप लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं। दैट इज नॉट योर वरी। इज्जत अल्लाह देता है, आपको इज्जत के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। We have one more question. Mohammad Taha का question है कि is there any difference between leadership और management or are both the same? Very different, very different. मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा लफ्ज है। इस तरह से अगर आप देख लें, मैं दायरा बना रहा हूँ ना ऐसे करके। कैन एवरीवन सी माय सर्कल लाइक आई एम मेकिंग नाउ? या तो ये मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट है। सही है। मैनेजमेंट क्या होता है उसको डिफाइन भी कर देते हैं। बहुत बड़ा लफ्ज है लेकिन उसको एक डेफिनेशन में आपको एक जाविया पेश कर देता हूं। मैनेजमेंट इज कन्वर्टिंग scarce resources into desired results. Converting scarce resources into desired results effectively and efficiently. तो अगर मेरे पास सब्जी है, मुर्गी है, दाल है, अब ये रिसोर्सेज हैं, डिशेस जो है वो रिजल्ट्स हैं। अब मैं किस तरह से उन इंग्रेडिएंट्स को कन्वर्ट करता हूं इनटू दोज डिशेस और कितने कम वक्त में और कितने मेयारी अंदाज से मैं उसको करता हूं, वो मैनेजमेंट है। नाउ वेयर इज लीडरशिप? लीडरशिप इसके अंदर का एक एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल, प्लानिंग इज मैनेजमेंट, organizing is management, leading is part of management, controlling and monitoring is management, and achieving is also management. लेकिन आप गौर करें, जब आप किसी के साथ काम कर रहे हैं और आप टीम लीडर हैं, मसलन आपके साथ 2 लोग काम करते हैं, तो एक तो कॉन्वर्सेशन आपकी होगी काम से मुतालिक। देखिए भाई, आपका काम है डेटा गैदर करके उसको एनालाइज करके रिपोर्ट बनाना, और इस सिलसिले में जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं आपको दूंगा, और इस काम की आपका ये मुआवजा है। Now this is a manager talking to the team member. Now when this conversation shifts, what are your goals in life? What are you wanting to achieve? How can I help you achieve your goals? Are you learning? Are you growing? Can I guide you on how you can become better? That is leadership. तो अब मैनेजर जो है वो काम निकाल रहा है, काम की बातें कर रहा है, और लीडर बंदे को बना रहा है। लीडरशिप इज अबाउट विनिंग द हार्ट्स ऑफ पीपल, वर्किंग विथ यू एंड गाइडिंग देम टू बिकम बेटर, मोर इफेक्टिव एंड इन एनी वॉक ऑफ लाइफ। जरूरी नहीं है कि आपके साथ वो काम कर रहे हैं तो जिंदगी भर आप ही के साथ हो। वो आपके साथ हैं तो उनको ग्रो करना है, उनको डेवलप करना है, उनको अपने ख्वाब पूरे करने हैं। And it is your job to help them. That is leadership. I hope ये किसी हद तक clear हो गया कि management is converting resources, leadership is utilizing people, growing them, developing them, and creating succession and making others more powerful. Yes, I heard something. Yes, you can go on. Excuse me, sir. Yes, yes. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मोस्टली हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर। नाम क्या है, कहाँ से बोल रही हो? सर मेरा नाम अदीना अब्दुल गफ्फार है और मैं एनईडी यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कर रही हूँ। जी अच्छा। सर मैं कहना चाह रही हूँ कि मोस्टली हमारी यूनिवर्सिटीज में हमें लीडरशिप के बजाय हमें मैनेजमेंट ज़्यादा सिखाई जाती है और उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट में आपकी एजुकेशन काफ़ी कोर उसमें आ जाती है।
तो मैनेजमेंट जो बंदा करता है वो इनबिल्ट उसके अंदर लीडरशिप नहीं होती। लीडरशिप एक अलग किस्म की चीज होती है जो हमें नहीं सिखाई जाती, या हमें उसके अंदर जाके बताया नहीं जाता, हमारे अंदर वो चीज इनबिल्ट डाली नहीं जाती बचपन से। बिल्कुल तो सर बिल्कुल आपका क्या कहना है इसके ऊपर कि क्या होना बिल्कुल। चाहिए? मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छा आपने पहलू उजागर किया है। पाकिस्तान में हमने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी इस पार्ट को। तो मैं ये कहूँगा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स। फंक्शनल स्किल्स होते हैं, यानी कि फंक्शनल में टेक्निकल स्किल्स भी होते हैं, उसके अंदर सिविल इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, अकाउंटेंट बनना है, मार्केटियर बनना है, प्रोडक्शन मैनेजर बनना है, सप्लाई चेन का एक्सपर्ट बनना है। तो ये सारे क्या है? फंक्शनल स्किल्स है, और ये यूनिवर्सिटीज में सिखाए जाते हैं, मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल्स में। इंजीनियरिंग में भी अगर आप देखें तो यू नो द लॉट्स ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग and all kinds of functional capabilities are developed there. Leadership are human competencies. इंसानी सलाहियतों की बात है। तो when we talk of leadership, we are now talking of human skills, human competencies. अब एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, बाकिरदार इंसान कैसे बनना है, विजनरी इंसान कैसे बनना है, दूसरों को साथ किस तरह मिलाना है, इख्तिलाफात को कैसे अबूर करना है। That is why leadership is a set of behaviors and how you behave. And अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे रोशनी डालें तो उनके behaviors, what he did, what he said, how he did it, तो वो सारी चीजें हमें मिलती हैं। वो क़यादत, लीडरशिप अगर सीखनी है तो फिर आपको कुरान, जो मुसलमान है कुरान से सीख सकते हैं, जो मुख्तलिफ अकीदों से हैं वो भगवद गीता है, बाइबल है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। आई मीन if you want to learn about leadership, learn about history, learn about psychology, philosophy and politics, because it's all about human skills and it starts in families. घर में शुरू होती है कहानी। तरबियत जो हम कहते हैं ना, तरबियत, तालीम नहीं, तरबियत। तालीम is the functional technical stuff. Tarbiyat is the leadership stuff, character building जिसे हम कहते हैं। I hope Adina this answers partly your question, और इस पे बहुत आजकल जोर भी है, and that's why I love this। और इदारे में और माशरे में कंट्रीब्यूट करने के लिए फंक्शनल के साथ साथ आपको अपनी लीडरशिप कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी आती हैं, इसके अंदर इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स भी हैं, इसके अंदर आपके क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कोलैबोरेटिव लीडरशिप, और ये सारे एलिमेंट्स बहुत बहुत जरूरी हैं। हाउ टू मोटिवेट पीपल, हाउ टू इंस्पायर पीपल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। So Kamil Jamal says that making decision is most difficult thing that I think. Sometimes it is difficult to take right decision. So how can we overcome this confusion? वंडरफुल। अब इसके पीछे, सवाल के पीछे जो मखसूस इशू है वो मुझे नहीं पता, बट लेट मी मेक एन अजम्पशन, बिकॉज अक्सर लोगों का ये प्रॉब्लम होता है। द वर्स्ट थिंग टू डू इज ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। सबसे पहली चीज तो ये बिठा ले, डोंट बिकम ए पीपल प्लीजर। सम पीपल विल लव यू, सम पीपल विल हेट यू, सम पीपल विल इग्नोर यू। अगर ऐसा नहीं है then there is something wrong with you. This is, you know, Kamba is not everyone's favorite, you know. कुछ मुझे सुनते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कुछ कहते हैं यार काम्बा फिर आ गया है। ठीक है, तो I mean I don't mind। एक कहावत है, love me, hate me, don't ignore me। So that is something that I would urge everyone to keep in mind। And decisions जब आप लेते हैं, some decisions are difficult because we ourselves are not clear on what, on our values। What is important for me, values का इंतखाब कर लेना बहुत जरूरी है। और जब आपकी जाती वैल्यूज क्लियर होंगी, फिर आप देखिएगा कि जो भी आपके सामने ऑप्शंस हैं और आपको डिसाइड करना है, तो उस डिसीजन में आपको ये देखना है कि which option is satisfying my values। अब फॉर एग्जांपल मेरी 3 वैल्यूज हैं, एंड ये मैंने 97 में इंस्टॉल की थी। And it's not just nice words, there's a whole story behind it।
तो मेरी 3 वैल्यूज हैं, एक ऑनेस्टी है, एक रिस्पेक्ट है और एक लव है। तो जब भी मैं कोई फैसला कर रहा होता हूं तो मैं ये देखता हूं कि क्या am I being honest to the situation and to the person? Number 2, am I being respectful in the context of the individual and others who will be impacted by that decision? And third, love. Is it coming out of greed or is it coming out of generosity? And is it really meant to be good? Would I like that decision if I was in his or her place? तो ये 3 एलिमेंट्स हैं मेरी लाइफ में, तो जब कोई फैसला करना होता है मेरे लिए ये बड़ा आसान है। Assalamu alaikum, sir. जी जी। Sir, basically it sounds like that you are talking about some people's regarding love or hate. But the most thing that I asked you, what should we take about our career decision? Because sir, nowadays different fields are organized as such a freelancings. Most commonly, digital marketing are going so high. So Yeah. what we should do Now I get in it. in these हाँ, in अब these cases, decision, because we are engineers. Currently I am doing automotive engineering from NLD University. So we are engineers. We are a specialist in particular field. So ठीक, क्या सोच के इंजीनियरिंग आपने शुरू की थी, ये पहले बताएं ना। सर क्या इंजीनियरिंग इसलिए सर मैकेनिक्स साइड मेरा इंटरेस्ट था, तो दैट्स व्हाई नहीं क्यों, आई क्या वेंट फॉर इट। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट, ये बताओ ना पहले। सर सम मैन्युफैक्चरिंग side or making some innovations. Why? Why? सर स्टार्टिंग में तो मुझे यही शौक था कि चीजों को बनाना, न्यू क्रिएटिविटी लेके आना। ये तो आपका जाती शौक है ना। अब यहाँ पर मैं करियर चॉइस के हवाले से सर मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि हमने तो चूज कर ली अपने शौक के हवाले से, लेकिन जब हम दुनिया को आसपास जब देख रहे हैं इर्द गिर्द हमारे पास, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग तरफ मूव हो रही है वर्ल्ड जो है ना, ज्यादातर मोस्टली जो मूव कर रही है वो फ्रीलांसिंग टाइप। हाँ वो है, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि आप ये जो भी ट्रेंड्स हैं इसके बारे में अपने आप को अवेयर बिल्कुल रखें। लेकिन मैं 4 सवाल यहाँ पर पेश करूंगा, इट विल पॉसिबली गाइड यू ऑन योर करियर। नंबर 1 क्वेश्चन इज, और आपका नाम क्या है बेटा? सर कामिल जमाल। जमाल, अगर आप लिख लें इकिगाई, और मरियम लिखवा दें, शेयर कर दें टेक्स्ट के अंदर, इकिगाई, IKIGAI, इकिगाई। इट्स अ जापानीज मॉडल। एंड ये जो करियर्स का जो सवाल इन्होंने पूछा है, वो इसमें मकसद जब क्लियर हो जाता है, पर्पस जो किक स्टार्ट से रिलेटेड है, तो फिर करियर भी बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, मैं अभी आपको इकिगाई आपने लिख लिया टेक्स्ट में? यस सर, IKIGAI। और मैं मरियम आपके साथ, आई डोंट हैव यू ऑन माय व्हाट्सएप, अगर आप मेरा नंबर लिख लें, बाकी लिखते हैं नहीं लिखते आई डोंट केयर, 0345 509 4140। तो ये मेरा व्हाट्सएप है, ठीक है? आप मुझे मैसेज कर देना, आई विल सेंड यू द PDF वर्जन ऑफ दिस बुक। सर कुड यू प्लीज रिपीट योर नंबर? नहीं, आई विल नॉट। यही तो मजा है ना। तो मरियम मैं आपको ओके। और फिर जो आपसे तलब करेगा उसी को दीजिएगा, ऐसे मत दीजिएगा। जस्ट डोंट डंप इट टू योर मेंबर्स। नो, दोज हु आस्क फॉर इट गिव इट टू देम, ठीक है? अच्छा, नाउ व्हाट इज इकिगाई? ये थोड़ा सा हेल्प करता है। 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट एम आई ग्रेट एट? आई विल रिपीट, व्हाट एम आई ग्रेट एट? ये बहुत जरूरी सवाल है। सवाल नंबर 2, what do I love doing? अब आते हैं तीसरे पे, बहुत ही जरूरी है। what do I love doing के बाद तीसरा सवाल, does the world need what I love doing? If it doesn't, then careers भूल जाओ।
फिर अपना शौक पूरा करो दीवा कमरे में बैठ के, लेकिन करियर की बात ही ना। Okay, sir. Does the Got world it. want what Okay. I love doing? और फिर चौथा सवाल जो है वो है am I paid for it? ठीक है, तो now we have 4 questions. तो अगर आप आंसर टू क्वेश्चन 1 एंड आंसर टू क्वेश्चन 2 यानी 1 + 2 अगर आप उन आंसर्स को कंबाइन करेंगे यू विल गेट अ वर्ड. दैट वर्ड इज पैशन. हम पैशन की बात तो बहुत सुनते हैं, बट पैशन में सिर्फ है जज्बा, जुनून, तो हिम्मत ना हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, नहीं. That is not passion. Passion is about what you're great at and what you love doing, combining the two. फिर आप जब what you love doing combine करती हैं and the world needs it, ठीक है, that's your mission. Mission is your love for what you do and the world needing it. तो जब आपका शौक और दुनिया की जरूरत मिलती है तो उसको कहते हैं मिशन. वाओ. तो अब आपका पैशन क्लियर हो गया, अब आपको मिशन समझ लिया आपने. देन दुनिया को जरूरत है, द वर्ल्ड नीड्स इट. 3 + 4, द वर्ल्ड नीड्स इट, यू आर पेड फॉर इट. दैट्स अ वोकेशन. दैट इज द ट्रैक यू हैव टेकन. अब माली एक वोकेशन में है, धोबी एक वोकेशन है, इस तरह से बहुत से वोकेशंस होते हैं. इंजीनियरिंग एक वोकेशन है, फाइनेंस एक वोकेशन है. तो वोकेशन का तयन हो गया. एंड द 4 + 1 is what? I'm paid for it, I'm great at it. 4 + 1, I'm paid for it, I'm great at it. That is profession. तो अब आप गौर करें, you now know कि a profession is not कि मैंने ये डिग्री कर ली है तो I am a professional. No. Professional you will be when you are really good at something. There are lots of MBAs out there. Lots of them. I mean, लाखों में है. बल्कि मैं तो कहूँगा करोड़ों में होंगे. लेकिन how many MBAs have actually utilized their knowledge and added immense value to organizations and societies based on what they've learned in a social context or in a commercial context? So ये है 4. So what are the 4 words? The first word was passion, mission, vocation, profession. When you add these 4 words together, you get one word, and that is purpose, maqsad. Now, ikigai is a Japanese concept, and I have just introduced you to the concept. तो वो जो मैं PDF आपको भेजूंगा, प्लीज उसको आप जो लोग आपसे अब रिक्वेस्ट करें उनको भेज दीजिएगा. आई होप दैट दिस पार्टली आंसर्स. और मेरी गुजारिश है जो लोग सुन रहे हैं, इन सादे 4 सवालों के जब जवाब लिखें तो कम से कम एक पैराग्राफ तो लिखें ना, 50 वर्ड्स इन आंसर टू ईच क्वेश्चन. वो सेल्फ अवेयरनेस में भी हेल्प करेगा, मकसद को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेगा, और कौन सी ह्यूमन स्किल्स दरकार हैं, नॉट जस्ट दी टेक्निकल स्किल्स. फ्रीलांसिंग में भी बहुत सी ह्यूमन स्किल्स जरूरत होगी. अभी अगर आप देखें तो वेब डिजाइनिंग भी हो रही है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मार्केटिंग भी हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं लोग. इन सारी चीजों में टेक्निकल हुनर चाहिए और साथ में ह्यूमन स्किल्स चाहिए. ह्यूमन स्किल्स आर द लीडरशिप elements that give life and soul to whatever your technical competency is. Asad says, is critical thinking core element for leadership? Yes, critical thinking, creative thinking, and out-of-box thinking. These are all very, very. Thinking is critical for leadership. Strategic thinking भी आती है इसमें, analytical thinking भी आएगी, critical thinking भी आएगी, lateral thinking भी आएगी. That, I mean, thinking के जितने dimensions हैं उसको explore करना, exploit करना. Paradigm is a very useful word in this regard. Leaders have a particular paradigm. और मजे की बात यह है कि लीडरशिप में you have no option. हालात जैसे भी हों, आप अपनी टीम को डिप्रेस नहीं कर सकते. आप अपनी टीम को कड़वी से कड़वी गोली जो है ना आपको नजर आ रही हो, you've got to look at the alternative. You have to interpret a losing situation as an opportunity. A leader can never say, oh yaar, we are doomed.
ये लीडर कह नहीं सकता, हालात जितने गंभीर क्यों ना हो। सो लीडरशिप में जो सबसे आला किस्म की चीज है वो ये कि यू कैन नॉट बी अ लीडर इफ यू सी गुड न्यूज एंड बैड न्यूज. देयर इज नो बैड न्यूज, देयर इज ओनली अपॉर्चुनिटी. And you've got to see the threats, you've got to see the risks, but you've got to believe in yourself, believe in the people and in their potential, and take on the challenge intelligently, or decide to wait. इसके लिए strategy चाहिए, इसके लिए creative thinking चाहिए, critical thinking भी चाहिए. वो जो बात अभी हुई. Yeah. So to keep motivated the employees is a key for leadership, right? So, but how to do it? How to motivate someone? देखो, मोटिवेशन में और इंस्पिरेशन में एक फर्क है. यू मोटिवेट ह्यूमंस एंड एनिमल्स. ठीक है, आप बिल्ली को स्ट्रोक करें, कितनी प्यार से आके गोद में बैठ जाती है, म्याऊं करती है. आप कुत्ते के साथ थोड़ा सा अच्छा सलूक करें, उसके साथ गोद में ले लें, तो उसकी दुम ऐसे ऐसे हिल रही होती है. जब आप घर आते हैं कुत्ते भी मोटिवेट हो जाते हैं. घोड़े को आप थोड़ा सा शुगर क्यूब मुंह में डाल दें तो घोड़ा भी कर रहा होता है. So motivation is something which is to do with hygiene factors as well. Treat people with respect. Be kind to them. If they do well, थपकी दे दो. तो इंसान और जानवर दोनों motivation चाहते हैं. And just being decent and appreciating people for the good that they do is motivation. सही है? Inspiration is only unique to humans. You cannot inspire a horse. You cannot inspire a monkey. सही है. तो अब सवाल ये है कि to motivate others, you've got to be self-motivated. And motivation में external factors भी होते हैं और internal factors भी होते हैं. Leaders rely on their internal motivators, not external. उन्होंने मुझे थपकी नहीं दी, उन्होंने मुझे recognize नहीं किया तो मैं सड़ गया. अरे भाई, आपकी ऑन और ऑफ स्विच आपके साथ होनी चाहिए. इंजीनियर्स, योर ऑन एंड ऑफ स्विच शुड बी विथ यू. मूड ऑफ है, क्यों ऑफ है भाई, ऑन करें. तो मोटिवेशन इज रियली मोर योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यू विल बी मोटिवेटेड व्हेन यू आर क्लियर ऑन योर पर्पस एंड यू रियलाइज दैट इफ यू आर नॉट ऑन, यू कैन नॉट डिलीवर. एंड ओके, सो इफ यू गॉट अ डांट और इफ यू डिड नॉट डू समथिंग राइट, गलती हो गई, गिर गए, चोट आ गई, कोई बात नहीं है. It's not the end of the world. Failure is fertilizer for success. You learn from mistakes. If you're not making mistakes, you're doing nothing. So motivation is really converting your setbacks into learning opportunities. So in life, you either win or you learn. You never lose. You either win or you learn. तो ये बिठा लें. अब inspiration की जहां तक बात होती है, inspiration is when you lead by example. I want you to jump from a 20-foot wall and I'm telling you कि कुछ नहीं होगा, तुम कूद के देखो. नो 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 नो, तुम नहीं करोगे. अच्छा, फिर मैं चढ़ूंगा उस दीवार पे और कूदूंगा और तुम मुझे देखोगी कूदते हुए, हाँ? तो फिर तुम कहोगी, ओ ओके, एंड देन आई विल स्टैंड देयर एंड आई से, आ जाओ, देखो ना, मैंने भी किया, कम कम कम. So then I'm inspiring you. So inspiration is getting people to do things that they thought was impossible. But you've got to lead by example. Never expect from others that you're not willing to do it for yourself. That's inspiring. So motivation is being fair to people, treating them with respect, appreciating them, and giving them the decent environment. Inspiration is behaving in a way that others say, oh my God, I wish I could. अगर किसी ने ये कह दिया, बस समझ लो तुमने उनको इंस्पायर कर दिया. Believe in them and they'll follow. So how do we handle disagreements with our co-workers? By listening. By listening. And if your co-workers disagree, thank your stars because they're being honest with you. So that's the first thing. Be very happy when people disagree with you. Why? Because they're being honest with you. And then say to them, "ठीक है, listen, we are trying to achieve this goal. Do you agree with this goal? हम क्या इसी गोल पे काम कर रहे हैं? यानी कि हमें ये गाड़ी बनानी है या हमें ये प्लांट ऑपरेशनल करना है. Is this the goal? Fine. Now where is the disagreement?
तो वो कहेंगे जो आपने तरीका बनाया है ना कि वो ये वाली मशीन लगा दें, ये हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लें, इससे मेरा इख्तलाफ है। अच्छा बताएं आप, डू यू हैव अ बेटर आइडिया, टेल मी व्हाट आर योर रीजंस। तो जितना आप उसकी डिसएग्रीमेंट को समझने की कोशिश करेंगे और अपने प्रेफरेंसेस को पीछे कर दें, you'll be surprised when you listen to people. They are actually they feel respected, they feel valued, and at the same time, when you're sincerely and respectfully listening to them, maybe there is a middle way कि कुछ उनकी बात कुछ आपकी बात जब आप बैठ के एक दूसरे को सुनते हैं, तो that disagreement turns into an agreement to achieve that particular goal. और इस process को कहते हैं negotiation, because negotiation है क्या? Learn how to negotiate. कहते हैं in life you don't get what you deserve, you get what you negotiate. So a negotiation is a process which moves you from disagreement to a mutually beneficial agreement. So a lot of listening and respect and information and sincerity is involved in the process, and the idea is focus on the goal. कि भाई वो किस पोजीशन को लिए हुए हैं, मैं किस पोजीशन को लिया हुआ हूँ, what are the interests behind those positions, सुनना समझना। और जैसे वो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मैं कहा why do you want to be a freelancer, why do you want to trying to understand कि ठीक है, he took a position, but what is his interest in that? जी। How to handle that situation when you are a leader but one of your team member is not working? How to make work done from teammate and then that member is only taking the credit of that work by just staying with you as a teammate? किसी हद तक मैं ये सवाल समझ पाया हूँ। देखें, आपको एक कल्चर बनाना है टीम के अंदर। एक कल्चर क्या है? That of acknowledging people's contribution. Everyone in the team must have clear roles and responsibilities, must be aware of their goals, and there must be a transparent and an open communication mechanism so that everyone knows what he or she is supposed to be doing. And as you make progress on a particular project, those communication templates inform others कि भाई ये allocated tasks हैं, ये critical path है, इसका ये assigned है, इसका ये है। और फिर frequent updates, जिसमें कुछ daily updates हो सकती हैं, कुछ weekly updates हो सकती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि then you come out of this fear of someone taking the credit. In teams, whenever you succeed as a team, you say we did it. And the moment you say I did it, you are not working. I is only when you've made a mistake or blunder. तो I का क्या होता है? Oh, I made a mistake. और जब achievement होती है तो we did it. तो I का किरदार है accountability से और we का किरदार है achievement and celebration से. So if any person is wanting to take the credit, he is poisoning the team. ये बड़ा जरूरी है कि इसको आप बिठा लें। एक ये क्वेश्चन है कि बीइंग अ लीडर डेली लाइफ में आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? डेली लाइफ में एटीट्यूड कैसा होना चाहिए बीइंग अ लीडर? ये तो मैं कहूंगा कि देखो, लीडर कोई मखलूक तो नहीं है ना, चांद से उतरी हुई मखलूक तो नहीं है। तो लीडर होना तो एक अच्छा इंसान होना है जिसके पास लोग आए मशवरे के लिए, बातचीत के लिए, और वो दूसरों को अपने से ज्यादा ताकतवर करने का सोचे, अपने तक चीजें ना रखे, उनको आगे बढ़ाए। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। तो जो भी क्वालिटीज एक अच्छे इंसान की होती हैं वो एक अच्छे लीडर की होती है, और लीडर एक अच्छा फॉलोअर होता है। तो अगर आप इस पे कॉमन सेंसिकली देखें तो कौन सी वो एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज हैं जो कि एक अच्छे इंसान में होनी है, वो अच्छे लीडर में होगी। भाई इमेजिन आई क्लेम टू बी अ लीडर एंड यू डोंट ट्रस्ट मी। अभी एक लफ्ज, आप किसी बंदे को ट्रस्ट ना करें, एक लफ्ज है ना, बात खत्म हो गई, तो वो जीरो हो गया। तो इन लीडरशिप ट्रस्ट इज एट द हार्ट, एंड हाउ डू यू बिल्ड दैट ट्रस्ट, हाउ डू यू बिल्ड दैट कनेक्शन with your constituents,
That is by being open, transparent, and fair, because you're not perfect. Leaders, leaders are just human beings in a leadership role where they're claiming to take responsibility. But people are not perfect. आपके जितनी भी audience में है, मैं हूँ, आप हैं, Mariam, we're not perfect human beings, are we? We are imperfect. And that is what makes us beautiful. और टीम की जरूरत भी इसीलिए आती है. तो जरूरी है कि हम क्वालिटीज देखें, लेकिन ऐसी क्वालिटीज जिससे लोगों का एतमाद बढ़ जाए. तो ट्रस्ट इज द की. एंड उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए होंगी आपको पता है. कीप योर वर्ड, कीप योर प्रोमिसेस, बी ऑन टाइम, what say things which are true and don't just take us up the garden paths, all of that stuff. And have if you're true, if you have a vision, share it. Have a clean intent, no hidden agendas, all of that. Open, candid, respectful, capable. जो कमजोरी है वो भी बयान करें, जो strengths हैं वो भी बयान करें. Don't try to prove yourself to be someone you're not. ये सारी qualities आती हैं. We only have 4 minutes, and there is a question that how to balance the space and boundaries among the team members. Oh, yeah, this is a big question. Spaces and boundaries. देखिए, relevance is the key word. All conversations must be relevant to context. Relevant to context. For example, आप मुझसे कहें कि भाई कामरान भाई आप इतने open हैं तो आप ये बताइए कि आपके कितने love affairs चल रहे हैं. Now, is this relevant to context? It is not. इसी तरह से open होने का मतलब कतई ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही खुल जाएं. हाँ, जो बात हो रही है, जिस कॉन्टेक्स्ट में काम हो रहा है, उसके बारे में बिल्कुल ओपन होना जरूरी है. तो बाउंड्रीज का मतलब ये है कि everyone has a boundary, and if they are not defined and not shared with each other, then you can't balance. So one has to be very candid and open within the organization, within the team, कि भाई कौन सी चीजें हैं जो हमें कॉन्फिडेंशियल रखनी है और सबको नहीं बताना, और क्यों, ये डिसाइड करना होगा. बिकॉज अगर वो ऐसी चीजें हैं जिनका टीम मेंबर से कोई ताल्लुक नहीं है, और कोर टीम जो है आपकी गवर्निंग टीम, वो कहती है कि भाई ये वाले जो है ना बातें हम अपने तक रखेंगे, सबको नहीं बताएंगे, तो वो भी आप टीम को बताएं कि these 3 things are not going to be shared with you because they are not relevant. We don't want to burden you with that information. तो ये भी ओपननेस की एक मिसाल मैं दे रहा हूँ. ठीक है, अब कितने लोग हैं जो आपके घर आते हैं, अस्सलाम वालेकुम, इतना प्यारा घर है आपका, कितने का लिया था, अच्छा कितना किराया देते हैं आप. Now this is crossing boundaries, right? तो इसी तरह से you just have to be very clear in your communication and relevant to context का लेंस लेके चले. How to develop interpersonal skills? Practice. And a lot of listening. And by the way, मेरा YouTube channel है इसी नाम से, कामरान Z रिजवी. तो जो लोग सुन रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि वो जाएं वहाँ पर and not listen to my talks only, but playlists मैंने बनाई हुई हैं. And there are playlists on leadership, and there are playlists on communication, and several human skills that we are talking about. And channels also have been recommended. तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे सामईन और नाजरीन हैं वो सब्सक्राइब करें, because it's a learning portal. My intent for having this YouTube channel was not just to have my content, but also to curate videos that I have found to be very, very useful. And there are some movie clips also that I've shared on the channel. So inspiring stories from Pakistan bhi hai. And if there's anyone who wants to share some stuff with me, कि कामरान भाई इसको भी प्लेलिस्ट में डाल दें उस कैटेगरी में, तो वो भी मैं डाल दूंगा. I'll be very grateful. There is a question that, sir, it is often said that choosing a right person for specific job is important, but I think that the wrongness of a person can only be determined during the work at a job. Yes. तो कहते हैं hire people for attitude. Do they have an attitude for learning? And if they are prepared to get their hands dirty and learn, and they have the basic prerequisites, and they've demonstrated that they have the capacity, so yes,
hire them for attitude, and you can see that through assessment centers and interviews and personality tests जो होते हैं. Attitude अगर बंदे का सही है तो चीजें तो सीख लेगा, और अगर वो एटीट्यूड में माठा है या माठी है और skills उसके पास हैं, तो that could actually be quite harmful for the organization. So priority to attitude, and then the right person will develop into a competent individual for you, inshallah. So we have a last question. आईना देखने के 3 rules आपने अभी तक नहीं बताए. मैं आईने के 3 rules जो होता है कि आईना जो सामने होता है उसी से मुखातिब होता है. That's one. It only speaks to the person before it, and the subject matter is also the person and no one else. Second, it never speaks behind a person's back. And the third is it always keeps its secrets. वो राज की पीठ पीछे बात नहीं करता, जो सामने है उसको वही बताता है जो उसको दिखाई देता है, ऊपर नीचे नहीं करता. एंड तीसरा क्या है, वो राज की पासदारी करता है. You know, and the day we start doing that, I assure you, like we go to the mirror for guidance. सीधा आईने की बात हो रही है, टेढ़े आईने की नहीं. तो आप देखिएगा लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे मशवरे के लिए. And when they start coming to you, they view you as someone who reflects back that which is to be said and keeps secrets, and then they'll open up. They feel safe in your company. Gee, I hope. So we have one more question. Character or personality, which one is important? Character gives rise to personality. Roots give rise to the tree. तो आप देखेंगे कि दरख्त जो होता है, तनावर दरख्त, उसकी बड़ी गहरी जड़ें होती हैं. तो personality is the tree that we see. Character is the roots that give the tree the strength and the nourishment. So I would say both are important, naturally, but it all starts, if the roots are strong and deep, your personality will be remarkable. Thank you, sir. That's it. If anyone wants to make any comment, you guys can unmute yourself and go ahead. Do we have anyone? Let's have a countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Thank you everyone for joining, and please fill the form at the end, and because you would be given certificates through that form. And thank you, sir, so much for giving us the time from your busy schedule and enlightening us with this interactive session. I just loved this session. It was so interactive. नहीं, और साथ में एक मजे की बात है कि किक स्टार्ट लीडरशिप. आई होप जितने लोग सुन रहे हैं आज से अपने आप को लीडर तस्वुर करें. They don't have to become a leader. They are a leader. Take responsibility, have a vision, and you will fly. Inshallah. God bless you. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.
Everyone is requested to leave the meeting, please.